Hello students, I am Jayasri Miss. Today I am going to teach the lesson Biology, Disease and the First Aid. Now, first of all, in this chapter we will study about health, disease, then the prevention of how the disease that spread, infection spread, and what are the types of the disease, and how to prevent the disease, what is first aid, and what is immunization, and how to maintain the surroundings clean. Everything we will teach in this lecture. First of all, health. Normally, a person is said to be healthy if he or she is not suffering from any disease. When a person can work hard, interact well with people, enjoy leisure, and can adapt to the changes and the stress of the life, then he or she is in good health. Here, the definition of the health is like not merely the absence of disease. Health means not merely the absence of disease, but here, when the person can work hard, interact well with people, enjoy the leisure, and adapt to the changes and the stresses of the life, then he or she is in a good health. Now, health is defined as a state of complete physical, mental, and the social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Infirmity means what? कि there is a feebleness due to the old age. So, according to WHO, health is a complete state of physical, mental and the social well-being. फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी एंड सोशली भी इंटरेक्ट सबके साथ इंटरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए. नॉट खाली डिजीज एब्सेंट हुआ तो नॉट हेल्दी. एवरीथिंग कंसिडर्स इन हेल्थ, राइट? Physical health and mental health are interrelated. A sound mind in a sound body. Suppose you are a sound mind in a sound body. If your mind is sound, then if your body is sound, then your mind is also sound. Suppose you got headache, you are suffering from this one fever and anything else, pain in abdomen, etc. तो your mind is not sound. अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, राइट? Is an old and appropriate saying for the good health. Now, disease. Disease is a departure from the normal health through the structural and the functional disorder of the body. तो सपोज डिजीज़ कभी होगा, रोग कभी होगा, जब भी अपने बॉडी का जो कोई भी पार्ट है उसका स्ट्रक्चर भी खराब होगा प्लस फंक्शंस, उसके काम भी नहीं होगा, काम भी डिसऑर्डर होगा, फंक्शनिंग डिसऑर्डर ऑल्सो इज दैट. दिस इज कॉल्ड द डिजीज़. There are categories of disease. These are the two main categories: communicable or infectious disease and non-communicable. Communicable disease, these are the spread from the infected person to the healthy person. जैसे अभी क्या हो रहा है, कोरोना इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़. जो अभी कोई भी पर्सन को कोरोना इन्फेक्शन हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, राइट? दिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़. ना दिस डिजीज़ आर कॉज बाय द जर्म्स नोन एज पैथोजेंस. When pathogens reach the healthy person through the certain agencies like insect bite, contaminated water or food, etc., तो ही और शी सफर इन्फेक्टेड विद डिजीज. सपोज अभी पैथोजेंस कैसे कैसे मिलते हैं अपने बॉडी में, या तो कोई इंसेक्ट बाइट हुआ, कोई हमने गंदा कंटामिनेटेड वाटर पिया लिया, या तो फूड खा लिया, तो ही और शी मे बी इन्फेक्टेड. एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कॉलेरा है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर जैसे कोरोना है, डेंगू, मलेरिया, जैसे वायरल फीवर्स. Then chicken pox, malaria, typhoid, etc. These are the communicable examples of communicable disease. Now, non-communicable disease or non-infectious disease. Now, these diseases are not caused by any germ. Therefore, this disease cannot spread from an infected person to the healthy person. ये germ से नहीं होते हैं. Non-communicable disease. They are the non-transmissible. जो अभी सपोज कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, वो अभी तो कोई भी पेशेंट को कैंसर रहेगा तो दूसरे को वो कैंसर नहीं होगा. जैसे किसी को डायबिटीज़ रहेगा तो नॉट इन्फेक्टेड. तो दिस आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. दे आर कॉज बाय द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन. सपोज अभी डायबिटीज़ है तो पैनक्रियास इज अफेक्टेड, हार्ट अटैक में हार्ट इज अफेक्टेड, आर्टरीज आर अफेक्टेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज. कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन to the healthy person by the entry of microorganisms or pathogens. This disease is caused by, as you know, वायरस है, बैक्टीरिया. कौन से उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, worms, protozoa, etc. The disease causing germs, they are called pathogens. We get such infection through air, water, food,
फिजिकल कॉन्टैक्ट, कट्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड फ्रॉम द इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो से, फ्लाइज है, एक्सेट्रा. नाउ स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़. तो अभी स्प्रेड तो बहुत तरीके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीका है. तो कंटिन्यू द रेस, पैथोजन से ना वो ट्राई करते हैं. जैसे अभी कोई भी रेस है उसको कंटिन्यू करना रहेगा ना, तो पैथोजन स्ट्राइक फ्रॉम इट इन्फेक्टेड पर्सन नॉर्मल पर्सन में जाएगा, तो उसका जो चेन है वो कंटिन्यू रहेगा. राइट. अभी जो कोरोना का है, हम लोग कैसे बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि चेन को, उसका वायरस का चेन तोड़ना है, तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. तो दिस पैथोजन ट्रांसफर फ्रॉम द पेशेंट टू द this one healthy person generally in the following way. First, direct method and indirect method. डायरेक्ट मेथड डिजीज़ लाइक मीजल्स है, चिकन पॉक्स, फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू. हम लोग वो पेशेंट, जो भी पेशेंट को ये जो डिजीज़ रहेगा फीजल से, तो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो हमको भी वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा पर्सन. इनडायरेक्ट मेथड इंक्लूड टचिंग. अभी सपोज इनडायरेक्ट में कभी कोई डिजीज पर्सन है, उसका टचिंग और शेयरिंग द आइटम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन है. जैसे उसका यूज़ ऑफ सेम टॉवेल, उसका हैंडकरचीफ यूज़ किया, सेम बेड यूज शेयर किया, शेयरिंग द सेम यूटेंसिल्स ऑल्सो विच आर हैंडल्ड बाय द पेशेंट मे स्प्रेड द डिजीज टू द हेल्दी पर्सन. कॉन्टामिनेटेड फूड एंड और द ड्रिंक, राइट, फूड एंड वाटर और ड्रिंक. सपोज मैनी इंटेस्टिनल डिजीज़ है, जिसे वो इन्फेक्टेड फूड खाएंगे, कॉन्टामिनेटेड फूड, बासी फूड, तो स्प्रेड बाय द इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स से, देट आर नॉट वॉश प्रॉपरली. अगर सपोज कोई भी फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स विल बी वॉश बिफोर ईटिंग, एंड अगर सपोज वॉश विथ कॉन्टामिनेटेड वाटर से वॉश किया तो भी पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड. जर्म्स ऑन द इन्फेक्टेड वेजिटेबल फ्रूट्स ऑन रीचिंग द एलिमेंट्री कैनाल दैट कॉज डिजीज. Vectors are those organisms, example houseflies, mosquitoes, etc. They carry the germs from the source of infection, but themselves do not get infected. वो खुद इन्फेक्शन नहीं होता है उनको. फॉर एग्जाम्पल अभी मॉस्किटो से, जिसे कोई मलेरिया पेशेंट है, उसको उसने काटा, देन अगेन सेम मॉस्किटो, देन नॉर्मल पर्सन को काटा सेम मॉस्किटो, तो उसको मलेरिया होने का चांसेस है. तो सपोज द फीलिंग दिस मॉस्किटोज वाइल फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट गेन द जर्म्स इन द बॉडीज and get the transfer them to the in the bloodstream of the healthy person, and then they get by whom they bite next. Houseflies carry the germs. Houseflies जो मक्खी है, बहुत सारे गार्बेज में, सीवेज में हाउस, वो उधर बैठती है और बाद में डिपोजिट ऑन द फूड, एंड दैट फूड वी ईट एंड वी गेट इन्फेक्टेड. नाउ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. मैनी वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स. अभी जैसे अभी एग्जाम्पल है कोरोना, रिसेंट एग्जाम्पल. कोरोना कैसे स्प्रेड होता है कि जैसे अभी किसने कफिंग किया, स्नीजिंग किया, तो उसके ड्रॉपलेट्स उड़े और सपोज सराउंडिंग में जितने भी पर्सेंट है वो इन्फेक्ट हो गए. दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग द मास्क टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, राइट. सो हम लोग कवर करते, माउथ एंड नोज को कवर करते, जो वी कैन नॉट गेट द इन्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल जर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस से पास इन टू द एयर ड्यूरिंग द स्नीजिंग और द कफिंग ऑफ द पेशेंट, राइट. Now these fine droplets remain suspended. यहाँ भी जो कफिंग के ड्रॉपलेट्स है वो सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, राइट, इन द एयर फॉर क्वाइट सम टाइम. द हेल्थी पर्सन गेट्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द सेम एयर. अभी सेम एयर को हमने इनहेल किया तो उसको इन्फेक्शन मिलेगा. ट्यूबरकुलोसिस से कॉमन कोल्ड है, मिजल्स, डिप्थेरिया एक्सेट्रा दे स्प्रेड इन दिस वे. नाउ सम कम्युनिकेबल डिजीज इन ब्रीफ. अभी फर्स्ट डिजीज कॉज बाय वायरस. वायरस से कौन से डिजीज होते हैं? इन्फ्लुएंजा. इट इज़ अ कॉमन डिजीज. सिम्टम्स आर कोल्ड है, फीवर, चिल, ठंडी बज के बुखार आता है, एंड इज ऑल्सो स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. मीजल्स एकदम हाईली कंटेजियस, उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया तो भी अपने को डायरेक्टली डिजीज होगा. अपना इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यूजुअली ऑफ द चिल्ड्रन स्प्रेड बाय द कॉन्टैक्ट. देन सिम्टम नेजल डिस्चार्ज है, रेडनेस ऑफ द आइज, कफिंग, फीवर, इरप्शन ऑफ रेड पस्ट्यूल्स पेप्यूल्स, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं. AIDS acquired immunodeficiency syndrome is caused due to virus HIV, human immunodeficiency virus. ये जो वो वायरस है क्या करता है, अपनी जो इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म को वीकन कर देता है, पूरा कम कर देता है, यो मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी. AIDS makes the infected person prone to many other अभी सपोज इफ देर इज इम्यून सिस्टम इज weakens, so the person is prone to become more infected. ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस रहेंगे. इट स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल. कब कैसे होता है स्प्रेड? एड्स तो सेक्शुअल कॉन्टेक्ट से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फेक्टेड सीरिंज यूज़ किया तो. चिल्ड्रन भी ऑल्सो सपोज गेट इन्फेक्शन बाय इन्फेक्टेड मदर. अगर सपोज प्रेग्नेंट वुमन है, वो HIV पॉजिटिव है, तो एड्स किसमें, इसमें भी आ सकता है चाइल्ड में. डिजीज कॉज बाय वेक्टर्स. वेक्टर्स में मलेरिया, वेक्टर्स मीन्स मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज जो डिजीज स्प्रेड करते. कॉज बाय प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम,
which enter the human body through the bite of female Anopheles mosquito. It shows the symptoms of chills, intermittent high fever है. Prevention of the malaria can be done by the protection against mosquito as well as anti-malarial drugs, hydroxychloroquine, anti-malarial drugs. Then dengue. Dengue is also mosquito-borne disease caused by dengue virus, spread by mosquito कौन सा Aedes aegypti. सिम्टम्स टिपिकली बिगिन 3 to 14 डेज तक उसके आफ्टर इन्फेक्शन. अब सपोज ये जो मॉस्किटो उसने बाइट किया ना, बाद में 3 to 14 डेज में उसके जो सिम्टम्स दिखेंगे आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड के बाद. तो दिस में इंक्लूड हाई फीवर है, हेडेक है, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, दिस कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैशेस भी होते हैं बॉडी में. इन एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है डेंगू में, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, हिमोरेज एंड देन मे कॉज डेथ. डेंगू कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट. अभी मॉस्किटो से बचना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है. अगर बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में, यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट बिकॉज इन रेनी सीजन देर इज मोर चांस ऑफ टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू बिकॉज दिस इज द वेरी मच फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस मॉस्किटोज, राइट. एंड मॉस्किटोज में क्या होता है, वो जो इंश्योरिंग देयर नो स्टेगनेंट वाटर. सपोज अभी बारिश आती है तो इसमें बहुत सारा जो पानी जमा हो जाता है, तो पानी जमा हो जाता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, तो देर इज़ अ मोर चांसेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो एंड मॉस्किटो इज़ वेरी मच इंक्रीज्ड. So we should not be, there is no any stagnant water to act the breeding of the ground in and around the home. Chikungunya. It is also the mosquito-borne disease caused by the virus which is spread by the bite of Aedes mosquito. The virus in this case is different from the dengue virus. Dengue से different है वो. The symptoms के 2 से 12 दिन में आते हैं after exposure and include इसमें fever, joint pain, muscle pain, headache होता है, same symptoms. Most people feel better within a week following the treatment. However, sometimes the joint pain may last for months तक भी रहते हैं. चिकनगुनिया छोटे छोटे जॉइंट्स में अफेक्ट होते हैं. प्रिवेंटिव एज अ मॉस्किटो कंट्रोल होगा. नेक्स्ट, ये सब टेबल सेम सिम्टम्स आर रिपीटेड. नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑन द डिजीज फॉर द डिजीज. नाउ एज यू राइटली सेड, प्रिवेंशन. अभी कोई भी डिजीज़ है तो उसको पहले प्रिवेंशन पहले जरूरी. अभी जैसे अभी रिसेंटली जो अपने प्राइम मिनिस्टर है उसने लॉकडाउन क्यों किया, बिकॉज दे वांट टू प्रिवेंट कोरोना, राइट. तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट. तो दैट्स वाई वी मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर. अभी जैसे अभी लॉकडाउन है तो कोई पीपल का कांटेक्ट नहीं होगा तो कोरोना का पेशेंट थोड़े कम आ जाएंगे. अगर कांटेक्ट बढ़ गया तो पेशेंट्स बढ़ जाएंगे, राइट. तो प्रिवेंशन इज़ बेटर. फर्स्ट, पब्लिक हाइजीन. Public hygiene is important personal hygiene. It involves the proper disposal of human excreta and domestic waste. इसमें सीवेज एंड केमिकल वेस्ट दैट शुड नॉट बी रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज. सीवेज एंड गटर का जितना भी पानी है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं डालना चाहिए बिकॉज इट इन्फेक्ट द वाटर, राइट. तो सीवेज का जो पानी है यू शुड केमिकली उसको पहले ट्रीट करके उसको पूरा क्लियर करना चाहिए, देन ओनली इट वुड बी डिस्चार्ज इनटू द वाटर. देन सेकेंड, देयर शुड बी प्रॉपर सीवर लाइन, जो गटर की जो लाइन है कनेक्टेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. नेक्स्ट, हेल्दी एनवायरमेंट. नाउ मेंटेन द हेल्दी एनवायरमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज ड्यू टू ब्रीडिंग. जब भी अभी हेल्दी एनवायरमेंट रहेगा तो मॉस्किटोज़ के ब्रीडिंग ज़्यादा अंडे नहीं देगा, मॉस्किटो ब्रीडिंग कम होगा, हाउस फ्लाइज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो जाएंगे. गार्बेज है जो हम लोग डस्टबिन में डालते हैं शुड बी कवर्ड बीन्स होने चाहिए सो दैट फ्लाइज डू नॉट ब्रीड ऑन देम. We do not allow the water to stagnate surrounding your house, right, outside your house, in your neighborhood, etc. All the drains should be covered हो जाना चाहिए and will prevent breeding of mosquito. That's why the breeding of mosquito थोड़ा कम हो जाएंगे अगर stagnant water नहीं रहेगा तो. Contamination of drinking water with feces. feces में इसका टॉयलेट, जो एनिमल और ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है कॉजेज नंबर ऑफ feces. अभी बहुत सारे जो है पाइपलाइंस है जो पीने का ड्रिंकिंग वाटर और जो सीवेज की लाइन है कभी कभी लीकेज हो जाती है, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, देयर शुड बी चेक्ड. नेक्स्ट, वैक्सीनेशन. नाउ आइडिया ऑफ द वैक्सीनेशन दैट वाज कंसीव्ड बाय द साइंटिस्ट हु इज़ एडवर्ड जेनर. ये एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने उसका आइडिया मिला. फर्स्ट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड जो दूध निकालते हैं, हाँ, वो इन कॉन्टेक्ट विथ काउ से जो कॉन्टेक्ट होता है उनका सफरिंग फ्रॉम काउ पॉक्स नेवर गॉट स्मॉल पॉक्स. अभी जो है जो मिल्क मेड था वो काउ के कॉन्टेक्ट में रहता है तो उसको काउ पॉक्स हो गया, राइट. लेकिन जो मिल्क मेड जिसको काउ पॉक्स हो गया ना उसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा. बिकॉज क्या हो गया, बिकॉज ही वॉज इम्यून टू दैट स्मॉल पॉक्स. उसमें इम्यूनिटी आ गई, उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली. नाउ ही टेस्टेड दिस थियरी ऑन अ 8-year-old बॉय में टेस्ट किया.
ही गॉट द मटेरियल टेकन फ्रॉम द काउपॉक्स, पस्ट्यूल में से मटेरियल लिया, राइट, एंड इंट्रोड्यूस इन दैट बॉयज बॉडी. देन द बॉयज बॉडी डेवलप द पस्ट्यूल्स एंड लेटर ऑन फॉर्म द स्कैब एंड देन हील लिविंग द, उसके बाद में हीलिंग भी हो गया, लिविंग ओनली स्कार. टू फर्दर टेस्ट दिस आइडिया ही इंजेक्टेड द बॉय विथ स्मॉल पॉक्स वायरस में इंजेक्ट किया, राइट. तो 2 months के बाद आफ्टर 2 months एंड देन फाउंड नो साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स, बिकॉज वाई, कि जिसको स्मॉल पॉक्स हो गया था उसको, तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट थे जो इसको फाइट कर सके स्मॉल पॉक्स को. दैट्स वाई ही वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स. इन दिस वे जेनर्स वैक्सीनेशन एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल. ही यूज द टर्म वैक्सीन. वैक्सीन मीन इम्यूनिटी इंड्यूसिंग प्रिपरेशन. वैक्का इज अ लैटिन वर्ड मीन्स काउ. एंड द प्रोसेस उसको क्या बोलते, वैक्सीनेशन. एंड द जेनस फाइंडिंग्स वर लेटर कन्फर्म बाय द लुइस पैस्चर. उसने कन्फर्म किया एंड ही डेवलप द वैक्सीन. किसके बनाए, एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, कॉलेरा एक्सेट्रा. नाउ वैक्सीनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन, practice of artificially introducing germs and germ substance into the body for developing resistance to the particular diseases. अभी वैक्सीनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हम लोग क्या डालते हैं इसमें, जर्म्स और जर्म सब्सटेंस आर्टिफिशियली हम लोग इंजेक्ट करते हैं बॉडी में. तो क्या होता है, तो पर्टिकुलर जो हम लोग जिसका डिजीज़ का उसके एंटीबॉडीज ये बनेंगे. एंड दैट ये जो प्रैक्टिस, इसको साइंटिफिकली इट इज़ कॉल्ड प्रोफाइलैक्सिस. एंड द मटीरियल जो इंट्रोड्यूस होती है बॉडी में, इट इज़ कॉल्ड वैक्सीन. नेक्स्ट, यूजुअली द वैक्सीन इज और अ जर्म सब्सटेंस इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी बाय इंजेक्शन. जैसे टैब वैक्सीन है, वो किसके लिए, टाइफॉइड के लिए. समटाइम्स ओरली पोलियो ड्रग्स इन द ओरल पोलियो वैक्सीन. व्हेन द वैक्सीन इज इंजेक्टेड इन द बॉडी, क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स, WBC को स्टिमुलेट करता है. WBC इज कॉल्ड इम्यून मैकेनिज्म, बॉडी का समर्थ है, फाइटर. दे कभी भी कोई भी रॉन्ग सब्सटेंस अपने बॉडी में एंटर होता है ना, तो WBC क्या करता है, एंटीबॉडीज फाइंड करके उसको फाइट करके निकाल देता है. तो सपोज अभी रॉन्ग सब्सटेंस आया, जर्म सब्सटेंस आया वैक्सीन की तरह के, वैक्सीन जर्म सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन दैट एंटर इनटू द WBC इन द बॉडी. तो WBC क्या करेगा, फाइट करेगा उसके अगेंस्ट में और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रख देगा, राइट. तो अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गए. अभी नेक्स्ट टाइम हमको वो डिजीज़ कभी नहीं होगा, बिकॉज वी गॉट एंटीबॉडीज अगेंस्ट जर्म्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज. द टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन आर ओरिजिनली यूज ओनली फॉर द वैक्सीनेशन अगेंस्ट, पहले स्मॉल पॉक्स के लिए था, लेकिन अभी इतने जनरल सेंस में. अभी वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होता है, फर्स्ट यूजिंग द किल्ड जर्म्स. किल्ड जर्म्स એટલે टैब वैक्सीन, टाइफॉइड वैसे वो मरे हुए जर्म्स उसको इंजेक्ट करते हैं. एंड साल्क वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलिटिस एंड वैक्सीन फॉर रेबीज, डॉग बाइट. यूजिंग द लिविंग वीकन जर्म्स. अभी डेड तो जर्म्स रखते हैं, किल्ड जर्म्स. देन लिविंग जर्म्स ऑल्सो दे आर वीकन जर्म्स. द लिविंग जर्म्स आर ट्रीटेड इन सच ए वे दैट दे बिकम वेरी वीक हो जाते हैं. देन दे आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी and then they form the antibody formation and then vaccine for the measles and the freeze and dried BCG vaccine for TB, tuberculosis, using the fully virulent living germs. Example, vaccine for smallpox है. In this vaccination person is inoculated with cowpox virus which is very similar and the smallpox virus. अभी हाँ, cowpox are similar and the smallpox both are similar. अभी इसको वैक्सीन इस पर काउपॉक्स का डालते हैं, वायरस डालते हैं और इट्स वेरी मच सिमिलर टू दैट स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स एक्चुअली एज यू नो इन इंडिया इट इज़ इरेडिकेटेड यूजिंग टॉक्सॉइड. टॉक्सॉइड मीन्स क्या, दे आर द वैक्सीन्स द यूज फॉर डिप्थेरिया, टिटानस. अभी इसमें टॉक्सॉइड मीन्स क्या, दे आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द टॉक्सिन्स सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं वो हम लोग इंजेक्ट करेंगे बॉडी में. तो दिस पॉइजन्स क्या होगा, पहले हम उसको हार्मलेस बना देंगे बाय एडिशन ऑफ फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन से वो हार्मलेस बना देंगे, बाद में वही टॉक्सिन्स बॉडी में इंजेक्ट करेंगे. तो इसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स. टू रिटेन द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. अटेम्प्ट्स ऑफ बीइंग डेवलप द वैक्सीन अगेंस्ट एड्स अभी तक बनानी है. इम्यूनाइजेशन. नाउ इम्यूनाइजेशन इज आर्टिफिशियल वे ऑफ अचीविंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शंस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डेड एंड वीकन जर्म्स इन द वन्स बॉडी. हम लोग आई सेम है प्रोसेस वैक्सीनेशन का. ये वैक्सीनेशन के बाद क्या हो जाता है, इम्यून बॉडी बिकम इम्यून. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. जिससे आर्टिफिशियली हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इंजेक्ट करेंगे. तो वी आर गेटिंग द प्रोटेक्शन अगेन इन्फेक्शन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डेड एंड वीकन जर्म्स. इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन. व्हेन एक्सपोज टू वैक्सीन बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज, मोर और लेस परमानेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन अचीव. अगर एक बार तुमको चिकन पॉक्स हो गया ना, तो योर बॉडी बिकम इम्यून, दैट यू विल नॉट नेवर गेट चिकन पॉक्स अगेन इन योर लाइफ टाइम.
तो योर बॉडी बिकेम इम्यून टू दैट पर्टिकुलर डिजीज. नाउ दस इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इज मेड रेजिस्टेंस टू द स्पेसिफिक डिजीज बाय वैक्सीनेशन. जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक डिजीज बाय वैक्सीनेशन. अभी वैक्सीनेशन डाल के उसको पूरा रेजिस्टेंट बना देंगे. एंड इम्यूनाइजेशन हैज़ डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल ससेप्टेबल टू वेरियस डिजीज इन द वर्ल्ड में अभी इम्यूनाइजेशन की वजह से बहुत सारे डिजीज़ कम हो गए. पहले के ज़माने में जब वैक्सीन का जो ये डिस्कवरी नहीं हुआ था तभी बहुत सारे पेशेंट्स मर जाते थे. इन आर कंट्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज अंडर वे टू इम्यूनाइज इन्फेंट्स. कौन कौन सी वैक्सीन देते? टिटानस, डिप्थेरिया, whooping cough, mumps, measles, tuberculosis and polio. Pulse polio program is still going on in a full swing and you all must be quite familiar with it. It is being done to the eradicate polio from our country. Next, जो पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम है जो इंडिया में है, जैसे वो ओरल पोलियो वैक्सीन देने आते हैं बच्चे 5 साल के अंदर के बच्चे को, तो क्या होता है इंडिया वांट टू इरेडिकेट मीन्स क्या कि वो एक भी पेशेंट पोलियो का नहीं रहना चाहिए. इसको बोलते हैं इरेडिकेशन. नाउ प्रिवेंशन डन, वैक्सीनेशन डन. नाउ फर्स्ट एड. अभी फर्स्ट एड में क्या रहेगा कि सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, हार्ट अटैक आया, तुमको एक्सीडेंट हुआ कि कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन आ गई, आग लग गई, बर्न्स हुए, तो एट दैट टाइम इमीडिएट जो केयर हम लोग देते हैं पेशेंट को विदाउट टिल दैट टाइम डॉक्टर कम्स अराइव्स, दैट इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड. अभी एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ इमीडिएट केयर और हेल्प गिवन टू द पेशेंट एट द टाइम ऑफ मेडिकल इमरजेंसी बिफोर ही और शी इज़ टेकन टू द डॉक्टर. डॉक्टर के पास जाने के पहले हम लोग जो इमीडिएट केयर लेते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एड. ड्यूरिंग एक्सीडेंट है, हार्ट अटैक, स्नैक बाइट है, बर्न्स एक्सेट्रा. बर्न्स, फर्स्ट एड फॉर द बर्न्स डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ द बर्न्स. अभी सुपरफिशियल बर्न्स और डीप बर्न्स रहते हैं. तो अभी सुपरफिशियल बर्न्स रहेगा ना तो कोल्ड वाटर डाल दो बर्नट एरिया पे और बाद में कवर विद ड्रेसिंग. एंड इन डीप बर्न्स में क्या होगा, कभी डीप बर्न रहेगा ना तो देर इज नेवर यूज वाटर कभी नहीं डालने का. तो इस पर कवर द इंजर्ड पार्ट विद ड्रेसिंग. नेक्स्ट, इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना ड्यू टू एसिड और कुछ भी बहुत सारे एसिड अटैक होते हैं ना, वो एसिड्स केमिकल बर्न्स बोलते हैं उसको. उसमें रनिंग वाटर में पूरा डाल दो, बाद में 10 मिनट्स तक और बाद में ड्रेसिंग कर दो. ब्लीडिंग, in the case of bleeding raise the affected part as a affected part to minimize the gravitational flow of blood. ऐसा अफेक्ट ऊपर की तरफ रहेगा तो ब्लड नीचे नहीं जाएगा, ग्रेविटेशनल फ्लो ऑफ ब्लड मिनिमाइज हो जाएगा. देन वॉश दिस कट सरफेस विथ क्लीन वाटर, प्रेस दिस बटर एरिया विद द क्लीन कॉटन वूल एंड देन इफ पॉसिबल अप्लाई माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज करो. फ्रैक्चर, in case of the fracture lay the victim comfortable loosen this clothes, remove the clothes and then from the affected part, right, and do not move the fracture parts. Fracture part को कभी move नहीं करना चाहिए. It may affect the inside organs or in arteries or etc. If the fracture part is arm, then tie the sling tie करो to rest the arms on it. Eyes, as you know, if anything कुछ भी कचरा गया आँख में तो कभी rub नहीं करना चाहिए. We should wash the eye gently with clean water. Unconsciousness, if someone falls unconscious हो गए कोई, immediately lay the person comfortably on the bed and loosen the cloth, loose कर दो cloth, that let fresh air come into the room और बाद में fresh air आने दो. तो नेक्स्ट, swallowing poison. इन केस ऑफ द कोई पॉइजनस सब्सटेंस उसने स्वेलो कर लिया तो क्या करके मेक द पेशेंट ड्रिंक सॉल्ट वाटर लेकर तो क्या होगा, वो इट विल इंड्यूस द वॉमिटिंग एंड एवरीथिंग विल बी कम आउट ऑफ द स्टमक. स्नैक बाइट, इन केस ऑफ स्नैक बाइट इमीडिएटली स्क्वीज आउट द ब्लड, स्क्वीज कर दो ब्लड को पूरा निकाल चूस के एंड देन टाइटली बैंड टर्निपेट बांध के पूरा स्पॉट. बिकॉज टर्निपेट क्यों बांधेंगे कि जो स्नैक बाइट का जो पॉइजन है पूरे बॉडी में स्प्रेड ना हो. स्टिंग, इन द केस ऑफ स्टिंग बाय द बी स्टिंग, हनी बी का स्टिंग, वेस्ट पुट आउट द स्टिंग इफ स्टिल इन द वुड. अभी this will squeeze out the blood निकाल लो, force from the out of the venom and apply some alkali baking soda on that spot. फीवर, अभी कैसे फीवर आया, सपोज फीवर में बॉडी एक होता है कोल्ड, तो योर बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 98 डिग्री से 0.6 डिग्री से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. इफ इट इज़ मोर देन इंडिकेट्स देयर इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर. फीवर एक्चुअली डिजीज नहीं है, फीवर इज ए सिम्टम ऑफ द पर्टिकुलर, बहुत सारे डिजीज़ के सिम्टम्स में आता है. टाइफॉइड है, मलेरिया है, डेंगू, सब में फीवर होता है. इन्फेक्शन हो गया तो भी फीवर है, वायरल फ्लू एक्सेट्रा.
तो इन केस ऑफ हाई फीवर रह गया तो यू कैन इमीजिएटली अप्लाई द आइस पैक अप्लाई करो, या तो पीस ऑफ क्लोथ in a ice cold water on a forehead. That's why to reduce the temperature down. And if the fever persists, then contact doctor. Immediately contact the doctor. Now, what are the bad habits you should avoid? एक तो tobacco smoking, alcohol, ये should be avoided. First, harmful effects of consuming tobacco. जैसे स्मोकिंग है, च्यूइंग टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ माउथ एंड लंग कैंसर रिस्क हो जाता है माउथ. तो हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक. देन कफ एंड इरिटेशन इन द थ्रोट इज ऑल्सो द कॉमन सिम्टम है. कफ होता है, इरिटेशन होता है. जो इवन नॉन स्मोकर है, जो एक्टिव स्मोकर के बाद में बैठा है, ये ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द डिजीज. इट इज इसको क्या बोलते हैं, पैसिव स्मोकर बोलते हैं. जो नॉन स्मोकर भी अफेक्ट हो सकते हैं अगर दे आर सिटिंग बिसाइड द स्मोकिंग एक्टिव स्मोकर. Harmful effects of the drinking alcohol. Alcohol is a slow poison which affect the mental and physical process of the body. पूरा mentally physically affect करता है. अल्कोहल में को डैमेज टू नर्वस सिस्टम, सेरिबेलम को अफेक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स, किडनीज एंड द स्टमक. इवन एक्सेस अल्कोहल इज डैमेज टू लिवर ऑल्सो. एंड बहुत सारे अल्कोहलिक पेशेंट उसको सीरोसिस ऑफ लिवर होता है, लिवर पूरा ब्लॉक हो जाता है एंड गेट स्टोर फैट स्टोर करता है. अल्कोहल ड्रिंकिंग इम्पेयर जजमेंट, reduces the self control and also affects muscular coordination of the body resulting in the accident हो सकता है. इसलिए कभी भी कोई भी अल्कोहलिक पर्सन है ना, हमेशा उससे कोऑर्डिनेशन रहेगा, ऐसे भी कुछ भी चलेगा, बाद में एक्सीडेंट भी हो सकता है उसका. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग. अभी ड्रग्स है विच कॉजेज द इनसेंसिबल कंडीशन इन द ह्यूमन बींग्स. एग्जाम्पल नार्कोटिक ड्रग्स है, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जिसमें वो नशा हो जाता है पूरा बच्चे लोग पेशेंट को. मॉर्फिन है, कोकेन, हेरोइन, ओपियम एक्सेट्रा. सच ड्रग कॉज सीरियस डैमेज टू नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, अदर ऑर्गन्स. दे ऑल्सो कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स. तो ड्यू टू द हैबिचुअल यूज ऑफ द ड्रग एडिक्स, इसको हम लोग ये जो ड्रग्स है अगर हैबिचुअली हम लोग यूज़ करेंगे ना तो हम लोग को उसका एडिक्शन हो जाएगा. एंड देन वी कैन नॉट गिव अप दिस ड्रग्स इजीली एंड सफर फ्रॉम वेराइटी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इवन डेथ ऑल्सो. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज एंड हाई डिजीज ऑफ. First of all, first fill up. Mosquito is a vector for malaria. Dengue is caused by virus. Idea of vaccination that conceived by Edward Jenner. Not a psychotropic drugs, penicillin. Not a, which is one is a communicable disease. तो measles. बाकी हार्ट है, हार्ट अटैक है, एलर्जी, दे आर नॉट द communicable disease. Communicable non is given in the textbook. Yes. Next, name the following. Virus disease caused to sexual contact with infected person, AIDS. Disease caused by Plasmodium, malaria. Disease caused by the bite of female Anopheles mosquito is malaria also malaria. Then the two viral disease caused by mosquito bite, dengue, malaria. Droplet airborne disease, common cold, diphtheria. Definitions. Now first this one, cubes across. Kind of pathogen which causes disease like common cold and mumps. Virus. They are readily grow in your lice. Vaccine for TB, tuberculosis, BCG. Disease pertussis, popularly known as whooping cough. One of the most common insect that visit our flies. Disease weakens the defense mechanism, AIDS. Germs as introduce the body, vaccine. Disease in which eye skin become turn yellow, jaundice. Organ usually affected by tuberculosis or lungs. Disease caused bite of infected or rabies. Cover this parts of the body by the handkerchief while sneezing, droplet infection, mouth. Now this is all about the chapter disease and the hygiene. Chalo, thank you students. Stay at home, stay safe.